جلدی آ جاؤ نا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. شروع کریں جی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. قال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہو یا سمجھنا ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ جو شخص اس راہ پر چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے نہ صرف یہ کہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، بلکہ حدیث پاک یہ بتاتی ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو کسی ایسی راہ پر چلتا ہے جس میں اس کو علم کی تلاش ہو تو سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس خوش نصیب کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یعنی صرف اللہ کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کا راستہ ہی آسان نہیں ہوتا، ایسے خوش نصیب کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے. ہماری یہ ہفتہ روزہ کلاس جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس وقت میں پڑھتے ہیں، یہ قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے سے ہی متعلق ہے. دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس امت کے بہترین اور افضل ترین لوگوں میں شامل فرما لے. اس کے لیے ہم اللہ کے فضل و کرم سے تجوید جیسا انتہائی اہمیت کا حامل علم بڑی ہی آسانی اور آسان فہمی کے ساتھ الحمدللہ سیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ کی توفیق سے ایک وقت آئے گا کہ خود اس قابل ہوں گے کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں. یہی دو مین مقاصد ہیں ایک مسلمان کے لیے اللہ کی کتاب کے حوالے سے، کہ جب وہ اللہ کی کتاب کو پڑھے تو اس کو صحیح طور پر پڑھ سکے، اور پڑھتے ہی اس کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ آخر ہے کیا. کسی کی زبان سے اگر وہ سنے تو اس کو سننے میں لذت محسوس ہو، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے اس کو پتا ہو کہ میں سن کیا رہا ہوں.
हमें कुरान पाक जिस वक्त हम सुनते हैं तो हमें आवाज़ों की लज्जत ज़रूर महसूस होती है, लेकिन वो जो दिल पर असर होना है और अल्लाह के कलाम को समझना है, माना मफहूम का, उसका हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन अलामात को हम जहन में रखें और इसके मुताबिक हम तर्जुमा करते चले जाएं तो एक वक्त ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह कि बहुत हद तक हम कुरान पाक का तर्जुमा खुद करने में, और कुरान पाक अगर हमारे सामने पढ़ा जाए तो उसको इंशाअल्लाह सुनकर ही समझने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। तजवीद के सबक में इससे पहले चंद एक चीज़ें हमने पढ़ी हैं। आज इंशाअल्लाह हम पढ़ने जा रहे हैं 3 हरूफ। नंबर 1 है सा, और नंबर 2 है सीन, और नंबर 3 है सौद। सा, सीन और सौद, ये इन 3 हरूफ का एक सेट है। इन तीनों की आवाज आपस में मिलती है। हमने इससे पहले पढ़ा, इनको कहते हैं मिलती जुलती आवाजों वाले हरूफ। ये मेन सबक है हमारा तजवीद के असबाक में। वो 6 सेट हैं, उनमें से एक सेट है सा, सीन और सौद वाला। इन तीनों हरूफ में से सबसे आसान हरफ कौन सा है जिसको पढ़ना आसान है? बिल्कुल सीन। सीन पढ़ना बड़ा आसान है, इसीलिए हम क्या करते हैं, सा लिखी होती है हम उसको भी सीन ही पढ़ देते हैं, सौद होती है उसको भी हम सीन पढ़ देते हैं। बड़ा इजी है ना सीन को पढ़ना। तो इसलिए वो बात ज़हन में लाइए, अगर हर्फ बदलेगा तो माना बदल जाएगा। और उसकी बहुत सारी मिसालें हम इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह बयान कर चुके हैं। आज के सबक में भी मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बयान करूंगा। तो आइए जरा देखते हैं सा को हमने कैसे अदा करना है। इसमें आपने 3 चीजें मद्देनजर रखनी हैं। 2 का जिक्र हमारे सबक में मौजूद है। नंबर 1 है, इसको हमने बारीक करना है। सा को हमने बारीक करना है, और आप इसको अदा करने के लिए अगर थोड़ा सा एहतिमाम करें कि अपनी जुबान की जो नोक है, आगे वाला हिस्सा, वो सामने वाले ऊपर के 2 दांतों की नोक से लगा दें। यानी ये 2 दांत है आपके, आपकी जुबान यूं लग जाए और आपने उसमें गैप नहीं रखना, बस नरमी से लगा देनी है, तो सा अदा हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज है, इसके अंदर नरमी होगी, सख्ती नहीं करनी, इसमें बारीक करना है, नरम रखना है। और तीसरी चीज ये है, इसमें सीटी की आवाज नहीं पैदा होने देनी आपने, इसमें सीटी की आवाज नहीं पैदा होने देंगे। नस्र, नस, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नसरुन, नस, ये देखिए इसमें सीटी नहीं है। अगर मैं थोड़ी सी सख्ती कर दूंगा तो सीटी बन जाएगी, और वो सा से बदलकर वो सीन बन जाएगा। अगर सा लिखा हुआ है उसकी जगह पे मैंने सीन पढ़ दिया तो माना बदल जाएगा। उसके बाद है जनाब सीन। सीन के अंदर 2 चीजें हैं, बारीक करना इसको उसी तरह ही, और दूसरा इसके अंदर है सीटी की आवाज। इसमें सीटी की आवाज पैदा करनी है। इस पर कोई इतनी ज्यादा तवज्जो की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीन को अदा करना हमारे लिए आसान होता है। उसके बाद जनाब है सौद। सौद को सीन के बिल्कुल बरअक्स, सीन को हमने किया है बारीक, तो सौद को क्या करेंगे, मोटा करके अदा कर लेंगे, और इसमें सीटी की आवाज भी पैदा कर देंगे, सौद। और आसानी के लिए, समझने के लिए बड़ा एक आसान सा कुलिया है। आप किसी भी हरफ पर जज़म लगा दें। मसलन ये सा है ना, तो इसके ऊपर मैंने ये सा लिखी, इसके ऊपर जज़म लगा दिया। अब इससे पहले मैं हमजा लगा देता हूं, हमजा जबर सा, अस, अस। आप भी अदा करके देखिए, अस, बिल्कुल। अब सीटी की आवाज नहीं है। उसके बाद देखिए हमजा जबर सीन, हाँ, हमजा जबर सीन, अस। जो सीटी जितनी पैदा करनी है इसमें कर लीजिए, बारीक भी है, सीटी की आवाज भी, अस, अस, हमजा जबर सीन, अस। स्वाद देखिए, स्वाद को हमने क्या करना है, मोटा करना है, सीटी की आवाज होगी। सीन को बारीक किया आपने, अस। स्वाद को जरा कैसे, हमजा जबर सौद, अस, अस, ठीक है ना, अस, अस।
फर्क महसूस कीजिए। एस, ये मैंने क्या पढ़ा है? था। एस, एस, सीटी की आवाज नहीं आ रही ना आपको। अब देखिए एस, ये क्या पढ़ा है? सीन। ओस, सौद। एस, एस, ओस, ये है इन तीनों हरूफ को पढ़ने का तरीक़ाकार। अब जरा देखिए पेज पर, सा, सीन और सौद की सौत में फर्क, आवाज में फर्क। नंबर 1, सा की आवाज बारीक और नरम होती है। मिसाल हमारे सामने मौजूद है, नून जबर सा, नस, नसरुन, ठीक है, नसरुन, बड़ी नरमी के साथ सीटी की आवाज से बचाकर। सीन की आवाज बारीक होती है और सीटी वाली होती है। नून जबर सीन, नस, नसरुन। अब देखिए ये सीन है, अब इसको हमने मोटा भी नहीं करना, बारीक भी नहीं करना। सौद, मोटी और सीटी वाली आवाज की। नून जबर सौद, नसरुन, नस, ठीक है, तो ये पढ़ेंगे नसरुन। जी, अब देखिए कलिमात लिखे हुए, इनको हम पढ़ते हैं ताकि हमें अंदाजा हो सके। जी, साक़ुलुन, जी, साक़ुलुन के शुरू में क्या है? सा। जी, साक़ुलुन, साबितुन, असरा, इस्मुन। अब ये इस्मुन सा है, इस्मुन का क्या मतलब है? गुनाह। और अगर हम इस सा की जगह पे पढ़ दें सीन, तो क्या मतलब हो जाएगा? नाम। इस्मुन, इस्म शरीफ, ठीक है ना। तो आप देखिए हरफ बदला तो माना कितना बदल गया। कहां गुनाह हम पढ़ रहे हैं गुनाह के लिए, तो कहां पर वो नाम के लिए इस्तेमाल हो जाता है, सिर्फ हमारे हरफ को सही अदा न करने की वजह से। सल्लाजतुन, जी, उसके बाद सीन की मश्क देखिए, दरसुन, मुसाफिरुन, असरा, सैफुन, मसलूबुन। ये तमाम सीन से मुताल्लिका कलिमात हैं। अब देखिए जी सौद, सब्रुन, सौतुन, कसरुन, सैफुन, मसलूबुन। ये तमाम जगह यहां पर है सौद। सौद को मोटा और सीटी की आवाज के साथ, सीन को बारीक और सीटी की आवाज के साथ। सा को हमने देखना है तो इसको हमने बारीक पढ़ना है, बगैर सीटी की आवाज, ये चीज मैंने शामिल की है, और नरमी से आपने अदा करना है ताकि सा को पढ़ते वक्त हम सीन और स्वाद से फर्क कर सकें। लीजिए, अब ऐसे कलिमात हैं जिनमें ये हरूफ इस्तेमाल हुए और हमने उनको अदा करना है एक ही सांस में, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि हम कितना सही पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ता हूं तीनों कलिमात का सेट, फिर उसके बाद आप पढ़िए जी। सारा, 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 जी, नसरा, नसरा, नसरा। हाँ, अब आप खुद गौर करें कि क्या एक जैसे तो नहीं पढ़ देते आप सबको। पहला है नसरा, नसा, सा, अब इसके अंदर सीटी नहीं है, ठीक है ना, और मोटा भी नहीं है। नसरा, नसरा, नसरा। जी पढ़िए। हाँ जी, जिनकी आवाज में सा की अदायगी के वक्त सीटी की आवाज है ना, उन्होंने इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि हमने इसको काबू करना है। ठीक है, चलिए जी आगे। हारसा, 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 सौ। जी बिल्कुल, सीन में जितनी मर्जी सीटी की आवाज पैदा कर लें, वो जो आपने सा में करनी है ना, वो भी आप सीन में ले आइए, ठीक है ना। सा की खत्म करके सीन में कर दें। चलिए जी, असासुन, असासुन, अस्सासुन। जी, सुल्लतुन, सल्लतुन, सीलतुन, सल्लतुन, सीलतुन।
ہاں جی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی حرف کو موٹا کرنا ہوتا ہے نا تو ہم پہلے والے یا بعد والے حرف کو بھی ساتھ میں موٹا کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ بھئی ہماری پریکٹس نہیں ہوتی. تو پریشان نہیں ہونا، آپ پریکٹس میں لگے رہیں، انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہم نے سات کو موٹا کرنا ہے، سیلا سیلا، حالانکہ لام کو نہیں ہم نے کرنا، سیلاتن سی سی، سواد موٹی ہو رہی ہے، سی سین بن گئی نا، باریک ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ آخری جو سیٹ ہے مجھ سے سن لیجئے، ثلتن سلتن سیلتن، ایسے ان کو پڑھنا ہے. تو یہ ہے جناب ہمارا انشاءاللہ سبق آج کا. اب ہم نے یہ سیٹ بھی پڑھ لیا ہے، پھر میں آپ کو وہ بات یاد دلاؤں گا، جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اب تو یہ حروف آتے جائیں گے نا. اس سے پہلے ہم نے کون کون سے حرف پڑھ لیے ہیں؟ حمزہ اور عین، حمزہ اور عین، ان کا فرق. جب آپ پڑھ رہے ہو تو دیکھیں یہاں پر حمزہ ہے، اس کو تم نے ایسے ادا کرنا ہے، یہ عین آ گئی، اس کو ایسے ادا کرنا ہے. پھر دوسرا سیٹ ہم نے کون سا پڑھا تھا؟ تا اور تو، جب وہ پڑھیں تو اس کو مد نظر رکھیں. اب یہ تین حروف مزید ساتھ مل گئے ہیں، تو الحمدللہ کتنا سارا سبق ہمارا ہو گیا اللہ کے فضل سے. بس اب اس کو آپ عملی مشق میں لے آئیے گا. یہ نہیں کرنا کہ ہم یہاں پر ویکلی جمع اور یہاں پر تلاوت ہو تو بس اسی حد تک ہم کر لیں، نہیں. یہاں پر تو صرف ہم آپ کو ایک لائن دے دیتے ہیں، پورے ویک میں آپ نے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے. اور یہ مشکل نہیں ہے، آپ جتنی زیادہ پریکٹس کر لیں گے اتنا ہی انشاءاللہ تعالی آسان ہوتا چلا جائے گا.